اور ہمارے یہودی بھائی تورات اگر آپ پڑھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے. بس ہلکا سا پورا واقعہ ہمارے یوٹیوب پہ چلے جائیے گا, وہاں آپ کو مل جائے گا, یوٹیوب پر ڈھونڈیے گا. صرف اتنی سی بات کہ تورات کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام بزرگ کو جنگل میں پیاسا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بزرگ سے تم پیاسے ہو؟ کہا کہ بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں. کھانا تو کوئی نہ کوئی دے جاتا ہے, آ جاتا ہے, لیکن پانی 3-4 دن سے نہیں آیا ہے, تو میں کہیں پانی مل جائے تو جاؤ لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے پورا جنگل ڈھونڈا, پانی نہیں ملا. اس نے کہا جنگل سے باہر کہیں مل جائے تو لے آؤ. موسیٰ جنگل سے باہر گئے, پانی مل گیا, لے کر آئے. جیسے ہی پانی کا پیالہ لے کر اس بزرگ کے پاس پہنچے, اس بزرگ کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی, وہ بزرگ انتقال کر گیا. موسیٰ علیہ السلام اس کو سہارا دے رہے ہیں لیکن اس کی روح نہیں ہے, نکل چکی ہے, وہ ڈیتھ کر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کی دل کی دھڑکنیں بند, اس کی سانسیں بند. موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ کو زمین پر لٹایا, کھڑے ہوئے. تورات کہتی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ, پانی کا گلاس اٹھا کر پٹک دیا, پھینک دیا. کہا اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے, ایک بزرگ نے زندگی بھر تیری عبادت کر کے جنگل میں پوری زندگی گزار دی, تجھے سجدہ کرتا رہا, اور آج تو نے اس کو 2 گھونٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا. یہ تیرا کیسا انصاف ہے. آواز آتی ہے غیب سے, موسیٰ اپنی زبان کو لگام دے اور سوچ میں نے اس کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا ہے. اللہ نے, موسیٰ نے کہا مجھے بتا. تورات کہتی ہے وہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا موسیٰ بتاؤ تو اس جنگل میں آج گیا ہے, تیرے آنے سے پہلے اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو. پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو. اس کی مدد کون کرتا تھا؟ کہ اللہ تو. کہا میں موسیٰ آج تک اس کو پوری زندگی میں نے کھلایا, میں نے پلایا, اور آج جب میں نے اس کو 2-3 دن پانی نہیں دیا اور تو اس جنگل میں پہنچ گیا. ہائے موسیٰ میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے پانی کا سوال مجھے چھوڑ کر تجھ سے کر لیا, پانی کا سوال مجھے چھوڑ کر تجھ سے کر لیا. اے موسیٰ جب کھلاتا تھا میں, پلاتا تھا میں, تو آج اس نے پانی مجھ سے کیوں نہیں مانگا, تجھ سے کیوں مانگا ہے؟ میں نے اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تاکہ یہ منظر پوری دنیا کے سامنے آئے اور لوگ اس کو دیکھ لیں کہ دیکھو جب اللہ کسی کی روح نکال لیتا ہے تو کسی نبی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو 2 گھونٹ پانی بھی پلا سکے. اگر تمہارے اندر پانی پلانے کی طاقت ہے تو ذرا پلا کے دکھاؤ. یہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے واقعہ. میرے بھائیوں تورات میں توحید ہے, یہودی توحید پر عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے. ویدوں میں توحید ہے, ہندو بھائی عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے. بائبل میں توحید ہے, عیسائی عمل نہ کریں وہ الگ بات ہے. قرآن اور حدیث میں توحید ہے, مسلمان عمل نہ کرے تو اس میں قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے. ہمارے ہاں تو توحید یہ ہے کہ میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابی نے کہا کہ مجھے 2 جملوں میں بتائیے, 2 ورڈ میں بتائیے, مجھے دور جانا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کر تو اللہ سے سوال کرنا, اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگنا, یہی توحید ہے. توحید ویدوں میں ملے, توحید قرآن میں ملے گی. میرے بھائیوں آئیے اسلام رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے, اور دیکھیے مہان پرشوں کی زندگی اٹھائیے, عزت سب کی کیجیے. ہمارا دین کہتا ہے کہ تم کسی کے بزرگوں کو برا مت کہو, بلکہ ہمارا قرآن تو یہاں تک کہتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مت دو.
अगर तुम गैरों के महान पुरुषों और बुजुर्गों को गाली दोगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा फयसुब्बुल्लाह अदबन, वो तुम्हारे असली रब को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के। अगर तुम उनके बुजुर्गों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के। इसलिए तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। तुम उनकी इज्जत करोगे तो वो तुम्हारे रब की भी इज्जत करेंगे। अगर तुम उनको गाली दोगे तो दुश्मनी में वो तुम्हारे असली रब को भी गाली देंगे। इसलिए इज्जत और एहतराम बताया है इस्लाम ने मेरे भाइयों। लेकिन आज आप देख लीजिए दुनिया में बड़े बड़े मज़ाहिब को उठाकर देख लीजिए। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंसान नहीं रहने दिया, जबकि उनकी बाइबल ही कहती है, क्या कहती है कि वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के नबी। लेकिन उनकी बाइबल ये भी कहती है सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दोनों बातें हैं। आप देख लीजिए ईसाइयों ने ईसा को इंसानियत से निकाल दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया। और ईसाइयों के दूसरे फिरके ने ईसा को, मरियम को और अल्लाह को, तीनों को एक मान लिया। 3/1, 1/3। अल्लाह ही ईसा, अल्लाह ही मरियम, ईसा ही अल्लाह, ईसा ही मरियम, मरियम ही अल्लाह, मरियम ही ईसा। तीन एक और एक तीन। ईसाइयों ने ईसा को अलग कर दिया, इंसानियत से निकाल दिया। यहूदियों ने मूसा को भी अल्लाह का बेटा मान लिया। सिखों में चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में गुरु नानक की जहां मूर्ति बनी हुई है वहीं नीचे लिखा है नानक भगवान। उन्होंने गुरु नानक को भी इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, बुद्धिस्टों ने, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, लुम्बिनी चले जाओ, जहां गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति के नीचे जाकर देखेंगे तो लिखा है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध के मानने वाले बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को इंसानियत से निकाल दिया। वो गौतम बुद्ध जिसकी बीवी थी, वो गौतम बुद्ध जिसका बेटा राहुल था, वो गौतम बुद्ध जो अपनी बीवी पत्नी को छोड़कर, अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगलों की खाक छानने के लिए चले गए और सत्य की तलाश में, खोज में निकल गए, जिन्होंने पेड़ों के पत्ते और लकड़ियां चबा चबा कर जिंदगी गुजारी सत्य की तलाश में। वो इंसान थे इसलिए कि उनकी बीवी थी, वो इंसान थे इसलिए कि उनका बेटा था, लेकिन सत्य की खोज में अपनी बीवी को और अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगलों की खाक छानने के लिए चले गए और सत्य की तलाश में लोगों ने उनको भी भगवान का दर्जा दे दिया। हमारे हिंदू भाइयों में आ जाइए, रामचंद्र जी को महान पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम मानना ठीक था, लेकिन भगवान का दर्जा दे दिया। कृष्ण जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम और महान पुरुष तक मामला ठीक था, लेकिन उनको भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप देखिए दुनिया में कोई एक धर्म ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिन्होंने अपने यहाँ आने वाले ऋषि मुनि और पैगंबर को भगवान का दर्जा न दिया हो, इंसानियत से न निकाला हो। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने बताया अल्लाह की जात क्या है और उसके पैगंबर की हैसियत क्या है। पैगंबर अल्लाह के जिस्म का या रब के जिस्म का कोई अंश नहीं होता है, बल्कि वो बंदों में से कोई मनुष्य, कोई इंसान होता है जिसको वो रसूल बनाता है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी अनाउंसमेंट कर दो, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, दुख
शादियों ब्याह में मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम खाते हो हम भी खाते हैं, तुम पीते हो हम भी पीते हैं, तुम सोते हो हम भी सोते हैं, तुम्हें शादी की जरूरत पड़ती है, मैंने भी शादी की, तुम्हारे बच्चे हैं हमारे भी बच्चे हैं, तुम्हें दुख और सुख पहुंचता है, मुझे भी दुख और सुख पहुंचता है। हाँ, क्या नबी को खुशी नहीं पहुंची? हाँ, पहली जंग 313 मुसलमान 1000 से ज्यादा काफिर का लश्कर, जब ये फतह हुई और जंग जीते तो खुशी हुई, क्यों नहीं हुई? आपके घर में आपका बेटा इब्राहिम मारिया बिटिया के बदन से पैदा हुआ तो खुशी हुई, क्यों नहीं होगी? एक बाप के घर में लत्ते जिगर आया है, क्यों नहीं खुशी होगी? हाँ, गम भी पहुंचे। यही बेटा इब्राहिम जब नबी अकरम के हाथों में आखिरी सांस लेता है, खबर मिलती है आपका बेटा बीमार है। 1.5 साल का 18 महीने का ये बच्चा मारिया बिटिया के बदन से पैदा होने के बाद 18 महीने जिंदा रहने के बाद 1.5 साल की मुद्दत गुजारने के बाद नबी अकरम किसी जगह पर दीन का प्रचार कर रहे हैं, खबर मिलती है आपका बेटा बीमार है, सबको छोड़कर आते हैं, जल्दी कर पहुंचते हैं, सिसकियां लेते हुए अपने बेटे को उठाते हैं बिस्तर से, हाथ में लेते हैं। शायद बेटा अपने बाप के इन नरम हाथों का इंतजार कर रहा था। जैसे इब्राहिम अपने बाप के हाथों में आता है, उसका इंतकाल हो जाता है। नबी अकरम ने अपने बेटे की बॉडी को 1.5 महीने 1.5 साल के उस बच्चे को जैसे ही अपने बिस्तर पे रखा, इंतकाल कर चुका है, गोद में लिया तो इंतकाल, और जब रखा तो आंखें डुबडुबा गई, आंखों में आंसू आ गए। बुखारी किताबुल जनाइज के अल्फाज तो ये कहते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल कल्ब यहज़न, ऐ मेरे बेटे तेरे इंतकाल से मेरी आंखें अश्कबार हो गई, मेरा दिल गमगीन है, तेरी इंतकाल से मेरी आंखें अश्कबार हो गई, मेरा दिल गमगीन है। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे, ऐसे जुमले हम नहीं निकालेंगे जो मेरे रब को नाराज कर दें, जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। वइन्ना बिफिराक़िका लमहज़ून या इब्राहिम लमहज़ून, आ इब्राहिम तेरी जुदाई से मुझे गम जरूर हुआ है, तकलीफ हुई है, दुख हुआ है। मेरे भाइयों, नबी को खुशी भी आई, नबी को दुख भी आया। एक नौजवान अपने इलाके से आता है, अल्लाह के रसूल से कुछ शिकायत करना चाहता है अपने इलाके की कि ऐसा ऐसा है, लेकिन नबी के चेहरे को देखकर रौब और दबदबा उसके ऊपर तारी हो जाता है, वो बोल नहीं पा रहा है। नबी के चेहरे को देखकर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा है। आपने कहा बोलो क्या बात? जी वो हमारे गांव में कांपने लगता है। आपने कहा बोलो क्या बात, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा वो मेरे गांव में अल्लाह के रसूल, फिर डरने लगता है, कांपता है, थर्रा रहा है, इतना रो, इतना जलाल, नबी के चेहरे को देखकर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, रो और दबदबे के मारे। अल्लाह के नबी अपनी जमीन से उड़ते हैं, जहां बैठे थे उस नौजवान के पास जाते हैं, उसके दोनों कांधों को पकड़ते हैं। इब्ने माजा के अल्फाज पर गौर कीजिए, उसके दोनों कांधों को पकड़ते हैं और कहते हैं इन्नी लस्तु बिमलक, मुझसे क्यों डर रहे हो? इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं शहंशाह नहीं हूं, मैं बादशाह नहीं हूं, मुझसे क्यों डर रहे हो? आना बनु इम्रातिन, आना बनु इम्रातिन ताकुलुल कदीद। उलमा बैठे हैं, पूछो अरबी में कदीद के माना क्या होते हैं? मेरे भाइयों, नबी अकरम उस नौजवान के दिल से डर दूर करते हैं तो क्या कहते हैं? आना बनु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, आए नौजवान तुम क्यों डरते हो? मैं बादशाह नहीं, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, क्यों डर रहे हो? मैं भी ऐसी औरत का बेटा हूं, अना बनु
इम्रातिन, मुझे भी ऐसी औरत ने अपने पेट से पैदा किया है, अपने बटन से बाहर निकाला है।